I was sitting about 4 rows behind Anurag, and Anurag walks back four rows, looks at me and said, Kubra, see, I am like, Anurag Kashyap knows my name. I have arrived. कल मुकेश के ऑफिस से फोन आएगा, I want you to go and audition. I said fine. हाँ, वो अंकुर ये भी कह रहा था कि तुम्हारी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, तुम वो संभाल लेना, but do a good audition. I said fine. I went, I auditioned, and I swear to God, gags, मैंने उस ऑडिशन पे ना हग दिया. ओके सो पहला मेरा जूम इंटरव्यू है आज लाइफ में. मैं जूम पे भी शायद पहली बार किसी से बात कर रहा हूँ. ग्रुप में किए तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुब्रा सेठ से बात कर रहा हूँ. वो मेरी दोस्त है और हमने साथ में लाइक 2009-10 पहले और बात की है बॉम्बे की और सपनों की और ड्रीम्स की. और अब जब लोग मुझसे कहते हैं लाइक मेरी सिस्टर के बच्चे इंदौर में, या कहते हैं यार कुब्रा का काम देखा, ये देखा, वो देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मतलब मेरी दोस्त. Sweet. That is so sweet. I think मेरी तो एंटरटेनमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो आप ही के साथ हुई थी. सेक्रेड गेम्स की सब बात करते हैं, दूसरे काम की भी तुम्हारी बात करूंगा. अभी मैं तुम्हारी फिल्म में देख रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन सेक्रेड गेम्स का वो ऑडिशन वाला मोमेंट तुम्हें याद है जब तुम ऑडिशन दे रही थी? वो टाइम याद है? एब्सोल्युटली. तो एक्चुअली उसकी एक कहानी है. लाइक बिफोर द ऑडिशन I got a call from Ankur Tiwari, and Tiwari is somebody I have met like socially, and somebody I love very dearly because I do a lot of work with Commune as a storyteller. So Tiwari से मैं ब्रेकफास्ट में मिली थी और शाम को फोन आया कि I may have something very exciting for you. I said, what do you mean? And Tiwari is not somebody who will randomly call you. So मैंने कहा, okay, what is this? He said, नहीं, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और जोया और अनुराग के साथ. जोया अख्तर, yes. अनुराग कश्यप, he's like, yes. I'm like, यार क्या बताया? नहीं, you know what, they're looking for this one character. Apparently it's a bit tricky because it's transgender, but there's one scene in it which is kind of graphic. But I told them, I said that if someone can pull it off, it's you. I said, Ankur Tiwari, who knows me for maybe like, out of 10 years in Bombay, he probably knows me for like 20 different times that I've met him. I said, agar this meeting mein Ankur knows that I can do it, तो मुझे कितना confidence होना चाहिए कि I will be able to do it. So I said, fine, connect them. Next year I was hosting the Mami red carpet. And I was on the red carpet, and Mukkabaz was the closing film of the film festival. And Anurag ducks and leaves. So मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अनुराग से बात करने की. Finally red carpet बंद हुआ, मैं मुक्काबाज देखने अंदर गई थिएटर के अंदर. And I was sitting about 4 rows behind Anurag. And Anurag walks back four rows, looks at me and said, Kubra, see, I am like, Anurag Kashyap knows my name. I have arrived. I'm like, how do you know me? He's like, तुम्हारा दोस्त अंकुर कह रहा था कल मुकेश के ऑफिस से फोन आएगा, I want you to go and audition. I said fine. हाँ, वो अंकुर ये भी कह रहा था कि तुम्हारी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, तुम वो संभाल लेना, but do a good audition. I said fine. I went, I auditioned, and I swear to God, gags, मैंने उस ऑडिशन पे ना हग दिया. मैंने बहुत बुरा काम किया उस ऑडिशन में. मगर उसके एक हफ्ते बाद अनुराग का मैसेज आया, saying ऑडिशन हो गया ना तुम्हारा? मैंने कहा हाँ. I expect a lot more from you. Can you come back and give us another audition tomorrow at 2:30? I said, hell yeah. It was like a second chance for me. So I went back, I gave this audition, and you know there is something inside you that you know you're going to get it. At 2:30 I finished my audition. At 7:30 I got another call, and 3 days later I got a confirmation call, and 10 days from the first day I auditioned, I was shooting. Which was that scene जो audition में किया था, याद है वो scene क्या था?
हाँ, वो जो सीन है जहाँ पे नवाज और कुक्कू बेड पे सोए होते हैं और वो कहती है कि जादूगर से कभी उसके जादू के बारे में नहीं पूछते, दुनिया से पूछ. That was the line. That was the audition that I did. करेक्ट. सो ये जैसे कम लोग ही हैं जिनमें गट्स होते हैं. तुम्हें जितना मैं जानता हूँ कि ये सब लोग नहीं कर सकते. जाहिर है कि आप ऑडिशन में कभी कभी एक्टिंग खराब करते हो, लेकिन जो एक अंदर का जो एक बोलते ना जो पावर है अंदर का, जो गट है, वो तुम्हें बोलते ना बॉल्स जिसको बोलते हैं कि यार हिम्मत है इसमें, तो वो तो तुम्हारे अंदर है ही पैदाइश. आई एम श्योर कि वो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा होगा कैरेक्टर पकड़ने वाली जहां तक बात है. शायद, but I think मेरे लिए it was just doing whatever I needed to do in that moment ताकि वो रोल मुझे मिल जाए. मैंने कभी नहीं सोचा कि इस रोल से मेरा क्या होगा लाइफ में. मैंने तो इतनी शिद्दत, जब रेडी में मैंने बाई का काम किया था तब भी इतना ही किया था. मेरा जो डेडिकेशन है टू गेट समथिंग that does not vary based on अच्छा ये अपॉर्चुनिटी अनुराग कश्यप के साथ है तो इससे ज्यादा करो, अच्छा ये सलमान खान के इससे ज्यादा करो. मेरी इंटेंसिटी ऑफ गिविंग इज ऑलवेज द सेम. अब उसका क्या आउटकम है वो तो you're not the only one deciding in a film. You're not the only stakeholder of a film. There are tons of people who are stakeholders. So I think if you know that you have done your best, it's easier for you to sleep well at night. Because I do remember जब मैंने पहले ऑडिशन पे ना गंदा काम किया था, मैं सो नहीं पाई. या जब भी मतलब कोई इवेंट करते हो आप और इवेंट में ना थोड़ी ऐसा आपकी जीभ फंबल हो जाती है या आप बहुत गलत कर देते हो कुछ, तो it's human to make mistakes. But if you are not able to like convince yourself that you did a good job that day, I think it's a bit hard for me. So I put myself under a lot of pressure, but I always know that I put myself under good pressure. And I know that when it's right, I know it's right. Then you can stand in front of me and I can put up a fight. I can put up a good fight to tell you why I was right. अच्छा, सुल्तान का मुझे बताओ. सुल्तान जब मैं देख रहा था तो तुम्हारा नाम उसमें कितनी बार 50-100 बार कुबरा सेठ, कुबरा. उससे भी काफी एक मदद मिली है ना नाम, क्योंकि इंडस्ट्री में पहला स्ट्रगल है काम मिलना, फिर मिलते रहना, फिर आपका नाम याद रखा जाए. तो तुम्हारा काम तो सुल्तान में हो गया था मतलब. हाँ. I think मम्मा was the most proud at that time. अरे कुबरा, चैंग ने तुम्हारा नाम इतनी दफा बोला. चैंग के दोस्तों ने मुझे फोन करके बताया यार चैंग के साथ तुमने बड़ी नाइंसाफी की, बिकॉज चैंग तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम बोलते हैं, तुमने एक दफा चैंग का नाम लिया. मैंने कहा यार चैंग को क्या रिकग्निशन की जरूरत है, रिकग्निशन के तो हम भूखे हैं, हमें चाहिए. फिर अभी जवानी जाने मन कैसे मिली तुम्हें? उसके लिए क्या किया? काम से मिल गया या उसके लिए भी ऑडिशन हुआ या मालूम था डायरेक्टर को कि तुम्हें देना है काम? नहीं, जवानी जाने मन I was recommended by Saif. Okay. And I got to know that much later. But it was my second film that I got without an audition. But I love the process of audition. I think it's that 1 minute or that, that 4-page docket that you need to do your best in different variations. थोड़ा ज़्यादा करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे बोलो, थोड़ा वो करो, थोड़ा ये करो. जो एक्सपीरियंस है ना, जो सीखने का, जो ऑडिशन में मिलता है, वो मुझे बहुत पसंद है. I don't think I would have been able to crack Jawani if I had auditioned for it. It was the confidence that the makers had, and they said, we know Kubra can pull this off. And for me, it was a very different character, because जब आप जवानी देखते हो, तो आपको पता है कि it's anything but me. That character is anybody but me. Like this, who I'm talking to you right now with my hands moving and eyes widening up, that is the real me anyway. एक और बात ये कि जैसे अगर 15-20 साल पहले तुम यही काम कर रही होती और मैं इंटरव्यू 15-20 साल पहले तुम्हारा ले रहा होता, तो इमेज की बात करता कि ऐसा रोल करने के बाद इमेज चेंज हो जाती. बट लकीली अब सिनेमा इतना चेंज हो गया है, इतना हम बाहर का सिनेमा देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं कि अब थॉट बदल चुका है. लेकिन फिर भी इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? किस तरह के रोल को तुम्हें अप्रोच करना है? स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि अब तुम एक अलग तरह से काम करके अंदर आई हो. सेक्रेड गेम्स हुआ, जो दूसरा भी तुमने काम किया, स्टेज पे तुमने बहुत सारे शोज होस्ट किए. तो स्ट्रैटेजी क्या है कि किस तरह के रोल अब तुम ढूंढती हो, या क्या होता है दिमाग में, क्या चलता है? The goal is eventually when I think I used to laugh a lot, like लोग कहते थे अरे कुकू is the greatest role of your life. I said मगर लाइफ तो अभी शुरू हुई है.
So I think there will be, you know, an iconic way that people will remember you. शायद जब like I remember एक इंटरव्यू मैंने देखा था सोनू निगम का, और उन्होंने कहा था जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ कल हो ना हो का गाना प्ले होगा as my memory, as it's going to be immortal, live उससे as याद my रखा voice. जाएगा। जैसे अमरीश पुरी को मोगैम्बो के नाम से जाना जाता है, या तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर if that is something, it's great, but I think my life's goal professionally will be to continue taking up all the characters that come to me, because when I moved to Bombay I knew कि मुझे वो ब्रैकेट में नहीं पढ़ना है, वो ब्रैकेट था यू आर अ लीड हीरोइन। इसीलिए जब मैंने रेडी की, और मैं आई भी थी दुबई 2011 में जब फिल्म रिलीज हुई थी, और दुबई के लोगों ने कहा अच्छा तो इसीलिए तुम गई थी हाँ ये करने के लिए, तुम्हें लगा है तुम्हारा नाम बन गया। मैंने कहा यार मैं सलमान खान के साथ मेरी पहली फिल्म है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। So I think till the day I'm able to convince myself that I am doing what I am doing for myself, I will have no regrets. If I have no regrets, I think I can keep moving. And that's pretty much the way I choose to live my life and choose to live my profession. So whatever roles come my way. Like I've done now one scene role in Gully Boy. One scene. Yeah. एक सीन में आप बड़े या छोटे नहीं हो जाते। मेरे लिए जो बड़ा अपॉर्चुनिटी था वो ये था कि मैं जोया अख्तर रणवीर सिंह के साथ काम करूं, तो क्यों ना हो, मुझे तो सीखने का ही मौका मिल रहा है ना। तो आई हैव नो रिग्रेट्स। सो अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन जब हो गया है इंडस्ट्री में भी चीजें बदल जाएगी, बहुत सारी फिल्में नाउ विल वॉच इट ऑन Amazon एंड नेटफ्लिक्स, शूटिंग पे भी फर्क पड़ेगा। सो अभी क्या हो रहा है, लाइक पहले तो बताओ कि दिन कैसे तुम काट रही हो अपना, यूर रीडिंग वॉचिंग फोन पे, क्या हो रहा है, ऑडिशंस कैसे होंगे, अब क्या क्या हो रहा है, इंडस्ट्री की बातें बताओ मुझे। मुझे इस लॉकडाउन में एक ऑडिशन मिला, तो मैंने अपने एक कॉलीग को बुलाया घर पे, हम लोग 6 फीट अपार्ट, मतलब वो किचन के पास थी, मैं दीवार के पास थी, और हमने ऑडिशन किया। और मुझे तो जान के बहुत खुशी है कि ऑडिशन का पार्ट सिलेक्ट हो गया है, तो ये तो अच्छी बात है, मगर शूटिंग कब होगी ये हमें खुद नहीं पता। फिर हमने घर बैठे बैठे एक शो, पूरा 10 एपिसोड का शो शूट किया, इसीलिए मैं आपसे लास्ट वीक नहीं बात कर पाई। आई थिंक जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, सब लोग ये भसड़ में पड़ गए थे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, क्या सीख रहे हो, स्किल शेयर, कोर्सेरा, ये वो मास्टर क्लास। मैं सोई, बिकॉज मैंने पिछले साल बहुत भागम दौड़ी की है, बहुत ज्यादा। तो मैं तो 2 हफ्ते सोई, मैंने कहा मेरे को सोना है, ये प्रेशर में मुझे नहीं पढ़ना है। तो आई थिंक इट्स लिटरली द प्रेशर दैट यू चूज टू टेक अपॉन योरसेल्फ, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये प्रेशर लेना ही नहीं है, मुझे सोना है। तो वो बहुत अच्छी बात हुई। तो आई वोक अप, एंड व्हेन आई डिड, आई वाज आउट ऑफ हाइबरनेशन, एंड नाउ आई एम एबल टू वर्क बेटर। मैं देखता हूँ ट्विटर पे भी तुम, जब ये कुकू का जादू, कोई अगर अपना तुम्हारा फैन भी थोड़ा ज्यादा लिमिट क्रॉस करता है, तुम उसको एकदम जवाब देती हो, क्लास ले लेती हो उसकी पूरी तरह ट्विटर पे। हाँ, वो मुंह फट नेचर तो पहले से रहा है, यू सीन दैट। ऐसी बात नहीं है कि अब जाके मेरा मुंह बढ़ गया है, पहले से मुंह बढ़ा था। तो वो कहते हैं ना, ओह माय गॉड शी हैज गॉट लिप, आई हैव ऑलवेज हैड द लिप। ओके। But yeah, I mean, on Twitter, I use my freedom of speech with a little bit of a filtration system, if you can call it. It's like, you know, we say a lot of things off air, and on air, we have a very different language. So I think I try to use the language as much as possible. But I do understand कि वो जो platform है, वो मेरा platform है. It's where my private thoughts can be documented. And of course, sometimes they bite you in the back, but such is life. I think life can bite you in the back, and that's okay. 100%. एक और चीज कुबरा, जो ये कोरोना के बाद एक थॉट में सबके चेंज आ रहा है कि यार ये क्या हो गया, और नेचर के साथ हमने ऑब्वियसली वी हैव नॉट डन गुड टू नेचर, और बहुत सारे लोग के थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे थे। जब हम रोड्स पे भी देख रहे हैं कि माइग्रेंट्स चल के जा रहे हैं, काफी चीजें आर्टिस्ट के अंदर तो ज्यादा चेंजेस आते हैं, बिकॉज सेंसिटिव होता है आर्टिस्ट, इतना अवेयर होता है चीजों को लेके,
तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा कुछ एक थॉट आया है कि यार ये होना था या ये हमने नहीं किया या अब ये किया जाना चाहिए, क्या चल रहा है दिमाग में एज एन आर्टिस्ट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब शूटिंग वापस खुलेगी और हम वापस कब काम पे जाएंगे. Because yes, you're an artist and I understand how important it is for you to create and everything. But at the same time, you know, खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ के तरफ. मुझे रेंट देना है, मुझे अपने सैलरीज पे करनी है. तो अगर मैं काम नहीं करूंगी तो जितने लोग मुझ पर निर्भर है उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ सकती है. सो आई एम वेरी क्लियर कि आई नीड टू गेट बैक टू वर्क. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रियलाइजेशन है ये मेरे लिए नया नहीं है. मैं घर पे पहली बार नहीं बैठी हूँ अपने अपने में शांति बनाए रखे या अपने मैंने खुद अपने लिए एक पॉज, ऐसे ये जिंदगी में पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ. आई हैव बीन समबडी हु हैज ऑलवेज टेकन अ मिनिमम ऑफ 2 weeks every year for a holiday for myself. So I would go away on an expedition, whether it's climbing a mountain or whether it's rafting a river or whether it's anything that's adventurous. And that time would not only connect me to nature, but it would also disconnect me from the world. क्योंकि मेरा फोन बंद होता है, हम लोग माउंटेन्स में हैं या वैलीज में हैं, हम रिवर पे हैं, फोन हमेशा बंद रहता था. So I'm used to this peace and I'm used to knowing that, to be honest, all you need to survive is a duffel bag. I'm not kidding you. I have traveled with one duffel bag and I know that that's enough. So the value of what you have is not defined by how much you can purchase. I think the value of what you have is realized by knowing how to utilize what you have. And I think that's something that I have learned over a period of time. And when this lockdown happened, I've actually been a lot at peace. I've never been anxious. Most people around were worried. And I said, dude, instead of worrying, I think we can wonder what we can do right now. And I've been extremely busy. And I think it's been a good space to be in, really. Superb. So last सवाल तो यही है मेरा कि मॉम कैसी हैं, मॉम को कैसा लग रहा है देख के बेटी की सक्सेस और बेटी को प्यार, और बेटा भी उधर दानिश भी जो है वो छक्के मारा निकल के, लाइक ही इज डूइंग रियली वेल. आई एम सो हैप्पी. इतने लोग, कल उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था, बरखा ने इनसे बात की दानिश से, तो दोनों बच्चे अच्छा कर रहे हैं. मॉम को कैसा लग रहा है अभी? मॉम क्या कह रही कि अब छोड़ दिया है तुम्हें या गाइड करती रहती हैं? नहीं, mom and guidance go hand in hand. It's like hand in glove. Yeah. So mom and guidance will never, like, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना, नहीं करना, नहीं बेटा, that is too much बेटा, नहीं कर सकते. I think that happens still, which is a blessing, because I think very few people have that kind of blessing in their life. So we're very blessed to have that kind of guidance. And also I think to a very large extent that's fear. क्योंकि अगर हमें किसी से डर है तो वो मम्मा से है. Also I think आज ईद है और बहुत अजीब ईद है मेरे लिए, because ये पहला साल है शायद 10-15 साल में where I haven't spent it with my family or eating my mom's biryani. मेरी माँ हमेशा कहती थी कि हमारे घर में 3 शब्द नहीं कहे जा सकते कुबरा को, and that is you are beautiful. She would never say that because she always felt that, you know, I'm so light in the head that it's very easy to, like, you know, make me slip off my feet. So she would never say I'm beautiful. But जब Sacred Games release हुई, मेरी माँ ने सबसे, and अगर आप अब भी फोन करके मम्मा से पूछो, you know, what do you think about Danish, Kubra? So you must be so proud. She'll always say, no, I'm blessed. And that's a beautiful thing that my mom says. But I think when Sacred Games released, she said, I'm proud of Kubra. And I think that, for me, like, nothing mattered after that. Like, nothing else. I think I had arrived with my mom feeling proud of me, and that's where it ends. So I think if you have that close to your heart, then you're sorted. बिल्कुल. थैंक यू सो मच कुबरा सेठ. ईद मुबारक बहुत बहुत. ये नहीं पूछूंगा आने वाली फिल्में ये वो सब तो मालूम पड़ जाता है आजकल सोशल मीडिया से, लेकिन जितने लोग ये देख रहे हैं, कुबरा के साथ फोन पे हमने बहुत सारी बातें की थी और कुबरा ने बहुत अच्छा जॉब छोड़ा जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, एंड शी इज डूइंग रियली वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. और
Thank जल्दी you. मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, Ameen. I love you too. थैंक यू सो मच, जल्दी बात करते हैं।